Okay, so good evening one more time from my side to all of you. And as you know that the notification has already come out for DGCA AV Module Examination 2 of 22, and this exam is going to be very important for many of us because in COVID time we could not apply. So this year probably there may be 3 to 4 examinations expectedly. Anyway, so I hope you will be attempting for Module 11 definitely. So this particular video series will be the very short paraphrase of 8825, that is equipment and furnishing chapter, which is not that important, but there may be some questions on this particular thing. So it's only 5 pages PDF that I've created from a particular book, and I think this is more than enough to cover up the syllabus in short. So only the particular things that are most important for the DGCA point of view, those are only kept over here. So you can just quickly go through this PDF from the drive, and I'll just quickly go through in front of you right now. So सबसे पहले ऊपर में जो आता है कि emergency equipments क्या क्या होते हैं. Emergency equipments are the fire extinguishers, which are written as FireX in short. Then life rafts, which are used to evacuate passengers from whenever an aircraft will land on water. So वहाँ से life rafts जो छोटे छोटे बोट जैसे होते हैं, ठीक है, उससे लाइफ रैफ्ट से हम लोग पैसेंजर्स को वहाँ से इवैक्यूएट करके लैंड पे ले आ सकते हैं. फिर एस्केप स्लाइड्स रहते हैं. यू मस्ट हैव सीन एस्केप स्लाइड्स गेटिंग डिप्लॉयड ड्यूरिंग अ वाटर बॉर्न लैंडिंग. आई मीन व्हेनेवर द एयरक्राफ्ट लैंड्स ऑन वाटर. तो ये एस्केप स्लाइड्स क्या होते हैं, ये इन्फ्लेटेबल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है. जैसे पार्क में नहीं होता है नॉर्मल स्लाइड्स, वैसे स्लाइड्स होते हैं, इसमें कोई स्टेप्स नहीं रहता है, ठीक है. इट्स ऑल प्लेन थिंग, बट इट कैन बी इन्फ्लेटेड. ये डोर्स के नीचे रहते हैं, एंड द मोमेंट द केबिन क्रू और एनी ऑपरेटिंग क्रू विल बी ऑपरेटिंग इट, तो उसके अंदर एक कार्ट्रिज आता है, वो बर्स्ट हो जाता है. फिर वो जो बैलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसका, तो वो स्लाइड पूरा वो अंदर से हवा आके उसको पूरा हवा के प्रेशर से वो पूरा फैल जाता है, ठीक है. तो फिर उससे आदमी धीरे 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 करके एक वन बाई वन people can come down through that. Okay, then there is first aid kit. There is also one more thing that is called universal precaution kit. Okay, so these are the most important things. Even these are DGCA guidelines also, like you have to have a first aid kit as well as a universal precaution kit. That is one of the most important requirements under DGCA as well. Okay, and not many differences between first aider and universal precaution kit. They are almost same type of thing, normally used for mitigative purposes only. Only a universal precaution kit will have an AMBU bag and certain such particular equipments like CPR equipments and all. Okay, anyway, so these are the emergency equipments. There may be more as well, but these are the most important ones. Next, there is requirement of emergency equipments depending on the size of the aircraft and the number of packs. Okay, so if the question comes like this, that on what basis basically you fix how many equipments to keep, so that is definitely depending upon the number of passengers that you are carrying. ठीक है, जितने ज़्यादा पैसेंजर रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को सेफ्टी इक्विपमेंट्स बढ़ाना होगा. ओके, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट. नाउ स्टैंडर्ड्स क्या है, व्हाट स्टैंडर्ड शुड बी फॉलो. तो एज पर याजा यूरोपियन एविएशन, जो बेसिकली DCAB नॉर्मली याजा को आई मीन फॉर मेनी रीजंस दे फॉलो इट, and this certification standard is 23. As I have copied this from a YASA book, so basically they have given the European certification standard. Mainly the certification standard CS25. CS means certification standard. 25 is normally used for any large transport aircraft, and CS25.851 A and subpoint 1 is called as normally the certification standard for the minimum number of portable fire extinguishers to be kept in a passenger aircraft. Okay, so or any transport aircraft. So like that there may be many such requirements and many such rules under this certification standard 25. So this is one of them कि मिनिमम कितने पोर्टेबल मीन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो छोटे छोटे बॉटल होते हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं, द हैंड हेल्ड वंस, ठीक है. फिक्स्ड वाला नहीं होता है, जैसे सिस्टम के अंदर एक फिक्स्ड वाला भी होता है. व्हेन वी गो टू फायर प्रोटेक्शन विल कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स. तो ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि कितना पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए. तो उसका एक लिस्ट भी है जो नीचे हम लोगों को मिलेगा.
तो 4 फायर एक्स मिनिमम होना चाहिए फॉर अ 250 पैक्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो नॉर्मली 4 फायर एक्स फॉर एनी अराउंड 250 पैक्स एयरक्राफ्ट, दैट इज अ जनरल थिंग, ओके। और इसका एक लिस्ट भी है जो हम लोग नीचे देख लेंगे अभी। सो CS-25 इज फॉर इमरजेंसी डोर्स, सीट बेल्ट्स, देन यू हैव गॉट एग्जिट साइंस, इमरजेंसी एग्जिट साइंस ऑब्वियसली, इमरजेंसी लाइटिंग एंड लाइफ लेफ्ट लोकेशंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ हैं जो CS-25 के अंडर में आता है, कि ये चीज़ CS-25 बेसिकली सर्टिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें दिया हुआ है कि कहाँ क्या लगाना है, कितने लगाने हैं और कैसे लगाना है। ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली गिवन ओवर देयर। सो कहीं भी हम लोग अगर कहीं भी कभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, माउंट करेंगे, सो वी नीड टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स, ओके। नाउ ETSO, what is this? This is European Technical Standard Order and is for the details related to the equipments, okay. What are the equipments to be used and of what quality and what quantity and each and everything, normally it will be given in the ETSO as well. So this is for the European part. So normally we also follow the same sort of orders only, like FAA and EASA are the two main regulatory bodies that are followed by almost all the other countries. FAA is for American states and EASA is for European states, okay. So इन लोगों का जो भी standards रहते हैं ये almost पूरे world ही follow करता है, even including DGCA. Now okay, so this is the list. This list says about how many passenger capacity. Passenger in short is called PAX. So I've mentioned as PAX. How many PAX capacity and according to that how many fire extinguishers you actually require. So from 7 to 30 if PAX are available, or you can say like up to 30 if passengers are available, you need minimum 1 in the cabin. Then if you have 31 to 60 you need 2, and 61 to 200 you need 3, and 201 to 300 पैसेंजर्स इन दैट केस यू नीड 4. सो ये स्टार मारने का रीज़न ये है कि नॉर्मली क्योंकि हम लोग ये मॉड्यूल हेवी एयरक्राफ्ट के ऊपर है, तो हेवी एयरक्राफ्ट जनरली जो एयरलाइंस में अभी यूज़ हो रहा है लाइक एयरबस एंड बोइंग, दे नॉर्मली हैव 200 टू अराउंड 200 कैपेसिटी, नॉट इवन 200 ऑल्सो, लाइक 180 समथिंग लाइक दैट, एंड उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो उससे ज़्यादा होगा. तो ये जो रेंज है 61 to 300, तो इसके बीच में ये दो कैटेगरीज आ जा रहा है बेसिकली. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आएगा तो मे बी दिस विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अमॉन्ग दिस लिस्ट, ओके, विच यू नीड टू रिमेंबर. लाइक 3 होगा अगर 61 to 200 है, और 4 होगा अगर 200 to 300 है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू सी इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. लाइक 201 to 300 में 4 होगा, फिर एक एक करके बढ़ रहा है. 100 करके डिफरेंस है, 100 करके डिफरेंस है, ओके. Like then it is 301 to 400, then 401 to 500, then 501 to 600, then 601 to 700, okay. And according to that 1 increment of the fire extinguishers. And remember these are all the portable fire extinguishers कि जो handheld होते हैं, जिसको लेके हम move कर सकते हैं from one point to other point in the cabin. Now emergency equipments require detailed inspection and have some life limits. Means just like any product is having its expiry date, so these equipments may also have expiry dates and for certain period and needs recharging in some cases, ठीक है. बहुत सारी चीज़ होते हैं जो जिसके अंदर कुछ कार्टिज जैसे मैंने लाइफ रेफ्ट का बोला, फिर जो इन्फ्लेटेबल होते हैं कि जो बेसिकली हम लोग उसको मोड़ के या कंप्रेस करके एक पैकेट में इंस्टॉल करके रख देते हैं. लेकिन जब भी हम लोग को वो लाइफ वेस्ट हो, चाहे लाइफ जैकेट हो, चाहे लाइफ राफ्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जो इन्फ्लेट होके फिर बाद में फैल सकता है, फूल सकता है अंदर से बाई प्रेशराइज्ड एयर, तो उसमें कार्टिज जैसा कुछ इक्विपमेंट फिटेड होता है जो बेसिकली एक्सप्लोड करता है, तो वो फैल जाता है, ठीक है, फूल जाता है अंदर से. तो इन सब का एक सर्विस लाइफ होता है. जो एक्सप्लोशन तब तक ही कर सकता है जब तक उसके अंदर जो केमिकल है वो एक्टिव है. तो ये 5 साल से मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है. तो ये लाइक दिस थिंग्स डेफिनेटली रिक्वायर दिस रेगुलर रिचार्जिंग और मे बी रिप्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम्स. तो जब भी ओवरऑल के लिए ये सब यूनिट जाएगा तब ये चेंज हो जाता है. सो दीज आर लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज. नाउ देर आर लाइफ रैप्स एंड डोर स्लाइड्स which operates by pressurized cylinder which needs to be armed position to operate, okay. तो कोई भी जो सिस्टम होगा जो हम लोग को ऑपरेट करके उसको इन्फ्लेट करना है, मतलब फैलाना है अंदर से, एयर प्रेशर जाके फिर उसको अंदर से फुला देगा, तो
दोज टाइप ऑफ थिंग्स विल रिक्वायर टू बी पुट इन आर्म्ड पोजिशन, ठीक है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर वो आर्म्ड में नहीं रहा, ठीक है, डिसआर्म्ड रहा, तो फिर क्या होगा, जब हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे ना, इट विल नॉट ऑपरेट एट दैट पॉइंट. सो इट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द आर्म्ड पोजिशन ऑलवेज. लाइक आर्म्ड मीन्स एक्टिव, ओके, आर्म्ड मीन्स एक्टिव. एंड वहाँ पे एक डिस्प्ले भी आता है कि अगर कोई चीज़ आर्म्ड है तो वहाँ पे आपको दिखेगा, आइदर द कलर विल कम रेड एंड आर्म्ड, ऐसे लिखा आएगा, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, आर्म्ड होना चाहिए. फिर सीट्स हैव क्विक डिस्कनेक्ट लैच. ओके, नाउ क्योंकि ये इक्विपमेंट फर्निशिंग है तो सीट्स विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. हम लोग ज़्यादा सीट्स के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे. तो सीट्स कैसे प्लेस होते हैं, फ्लोर के ऊपर, आप अगर देखे होंगे बहुत ध्यान से, फ्लोर के ऊपर स्ट्रिप्स रहते हैं, मेटल स्ट्रिप्स, और उसके अंदर लाइक गोल गोल छेद रहता है बेसिकली, ठीक है. तो एक इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं वो सारे, और उस होल्स के बीच में ये जो हम लोग का जो सीट्स होता है, सीट्स के जो लेग्स होते हैं, तो लेग्स के नीचे भी वैसा ही एक उसका जस्ट ऑपोजिट शेप का सर्कुलर डिस्क टाइप लाइक क्विक रिलीज और क्विक डिस्कनेक्ट लैचेस रहते हैं, जो बेसिकली उस ट्रैक के अंदर जाके फंस जाता है, ठीक है. तो सीट ट्रैक जो है, आपको बस इतना याद रखना है कि सीट ट्रैक्स जो हैं, तो सीट ट्रैक्स के अंदर में जाके ये जो क्विक डिस्कनेक्ट लैचेस रहते हैं वो रहते हैं हर एक लेग्स पे, ठीक है. हर एक ईच एंड एवरी, लाइक इफ देयर आर 4 लेग्स देन देयर विल बी 4 क्विक डिस्कनेक्ट लैचेस. क्विक डिस्कनेक्ट मतलब वो आप उसको फंसा दोगे, प्रेस कर दोगे, लॉक हो जाएगा, फिर उसको लॉक को लूज़ कर दोगे, फिर वो इमीडिएटली लूज़ हो जाएगा, आप इमीडिएटली सीट जो है उसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है. लाइक इट विल बी फिक्स्ड ऑल थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट. लेकिन कभी भी आप उसको चाहो तो उस लैच को आप खोल के, चारों लैच को खोल दोगे तो सीट आपको आसानी से आप उसको हटा सकते हो, कहीं भी, आगे पीछे कहीं भी. नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 rows of seats is normally called as pitch and can be adjusted in 1 inch increment. ओके, इट्स लाइक एक एक इंच का, वो जो मैंने बोला कि सीट का जो ट्रैक्स होते हैं तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस आता है, 1 इंच डिस्टेंस आता है नॉर्मली, ठीक है. तो इसका मतलब है हम लोग एक सीट को एक एक इंच की दूरी पे आगे या पीछे ले जा सकते हैं. और 2 सीट मतलब जैसे कि आपका सीट है और सामने वाले का सीट है, तो इसके बीच का जो गैप है इसको पिच बोला जाता है, ठीक. इक्वली आपका जो सीट है और पीछे वाले का जो सीट है उसके गैप को भी पिच बोला जाता है, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जितना लेग लेंथ ज़्यादा होगा, मतलब जितना रूम रहेगा सामने पैर रखने का, जितना पिच सामने ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि दोनों सीट के बीच में ज़्यादा गैप रहेंगे, ठीक है. और ज़्यादा पिच होने के से क्या होगा कि हम लोग को कम सीट लगाने का चांस मिलेगा. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लगा रहे हैं कोई ऑपरेटर, कोई एयरलाइंस, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका पिच जो है वो कम है, ठीक है. ओके, नाउ सीट्स हैव आर्म रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म्स, कि वो जो सीट्स के साइड में जो आर्म रखने का जो जगह होता है वो रिक्लाइनिंग भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी मूवेबल ऑल्सो. ओके, तो उसका आर्म रेस्ट भी बोला जाता है एंड कैन बी एडजस्टेड, ठीक है. आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, चाहो तो उसको सेट कर सकते हो पीछे की तरफ एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है. सीट को भी थोड़ा मूव कर सकते हो पीछे की तरफ. एंड हैव अ सीट बैक ट्रे एज वेल फॉर फूड्स एंड आइटम्स कीपिंग. तो ये बहुत लोगों ने देखा होगा कि आपके सामने जो बैठता है ना, उसके पीछे लगा हुआ होता है एक ट्रे जो क्लिप से माउंटेड होता है, ठीक है. एक रोटेटेबल क्लिप से माउंटेड होता है. तो उस क्लिप को आप हटा दोगे तो वो ट्रे जो है वो नीचे आ जाता है आपके सामने. वो सामने वाले के चेयर के पीछे रहता है, लेकिन वो आपके सामने आके खुलता है, ठीक है. एंड ओवर देयर यू कैन कीप फूड्स एंड एनी आइटम्स ऑफ रीडिंग, और मे बी आप मोबाइल रख सकते हो, अपना टैब रख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उससे, ठीक है. एंड देन डिवान्स रहते हैं, सोफ़ाज रहता है, बिजनेस क्लास सीट्स रहते हैं. तो डिवान्स क्या होता है, सोफ़ा जैसा ही होता है, ठीक है. जैसे घर में सोफ़ा होता है वैसे ही होता है डिवान्स. तो उसको आप कन्वर्ट करके एक बेड भी बना सकते हो. नॉर्मली दीज आर अवेलेबल इन बिजनेस एयरक्राफ्ट्स और मे बी बिजनेस क्लास कैटेगरी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ओके. एंड दिस सीट्स ऑल्सो माउंट इन द सेम वे, सेम एक ही माउंटिंग का टेक्निक है, वही क्विक रिलीज लैचेस हैं सारे लेग्स पे, और वही सीट ट्रैक है, उसी में सब लोग जाके उसको फंसा देते हैं, ठीक है. फिर मेटल लगेज रेस्टेंट होल्ड्स होता है, ठीक है. मेटल लगेज रेस्टेंट होल्ड्स लगेज फ्रॉम स्लीपिंग. एंड इफ यू हैव टू कीप लगेज, then luggage is kept in the same way in the metal restraint area. Means like if you have to keep luggage in the seat, bottom position of your seat, or maybe the sofas or the divans, then there are some metal luggage restraints, ठीक है. वो केबल जैसा माउंटिंग हो सकता है,
और मेटल का स्ट्रिप्स भी रहते हैं उसमें. उसमें क्या होता है कि इफ़ यू कीप द लगेज एंड वी कैन लॉक इट ओवर देयर. ठीक है, तो ऐसा भी कुछ मैकेनिज्म सारे में नहीं होता है लेकिन बहुतों में देखा जाता है. ठीक है. Then crew seats can be adjusted as well, and which is very much required because otherwise the crew will not be at their ease of controlling the aircraft. And seat belts are attached from 5 points. क्रू का जो सीट बेल्ट रहता है, जैसे पैसेंजर्स का क्या रहता है कि बस हिप्स में होता है, कमर में होता है पैसेंजर का, लेकिन क्रू का 5 पॉइंट होता है कि 5 जगह से अटैच्ड होता है वो. एक ही सीट बेल्ट होता है लेकिन 5 अलग अलग जगह पे वो माउंटेड होता है. तो दैट गिव्स मोर सपोर्ट टू क्रू मेंबर. ओके, बिकॉज वो सामने रहते हैं. आई एम क्रू मेंबर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट पायलट्स. ओके, वो सामने रहते हैं तो वेन एवर दे विल मूव, सो दिस क्रू बेल्ट्स विल एक्चुअली होल्ड देम प्रॉपरली. सो अगर बस हिप में रहता तो बॉडी सामने जाने की कोशिश कर सकते थे ड्यूरिंग huge impact loads or anything. So their chest, upper body, lower body, everything is under cover by the seat belts, those 5 point mountings. फिर थर्ड क्रू सीट, जंप सीट और ऑब्जर्वर सीट, एक अलग से सीट होता है कैप्टन और को पायलट के पीछे, जो हम लोग कभी भी उसको स्टो करके फ्लाइट अटेंडेंट चाहे तो उस पर बैठ सकता है, या फिर कोई इंजीनियर चाहे उस पर बैठ सकते हैं, या फिर कोई अगर एक्स्ट्रा पायलट गया हुआ है तो वो भी बैठ सकता है. ठीक है. एंड देन यू हैव गॉट ओके, LCD इज़ यूज बिहाइंड सीट्स इन सम एयरलाइंस. ठीक है, कोई लग्जरी एयरलाइंस अगर है तो उसके हर एक सीट के पीछे एक LCD लगा रहेगा, ताकि वो पीछे वाला जो बैठा हुआ है वो आगे वाले की सीट के पीछे वो जो LCD लगा हुआ है उससे इंटरटेन हो सके. एंड लॉट ऑफ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम्स आर देयर. इन फ्लाइट वाईफाई भी रहता है, तो आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, अपना टैब कनेक्ट कर सकते हो. दूसरा कुछ वो जो LCDs रहते हैं वो भी वाईफाई से कनेक्टेड रहता है. यू कैन वॉच सम मूवीज़ और लाइक देयर मे बी अदर एंटरटेनिंग थिंग्स एंड ऑल. तो ये सारा कंट्रोल होता है सीट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से. ओके, ईच एंड एवरी सीट इज़ हैविंग इट्स ओन सीट इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, ACU. तो उससे हर एक सीट का अलग अलग यूनिट रहेगा और हर एक सीट अलग अलग, ताकि अपने तरीके से जो यूज़र है उस सीट के ऊपर जो बैठा हुआ है वो पैसेंजर अपने तरीके से उसको कंट्रोल कर सके. ठीक है, उस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को. ओके, देन इफ़ अ सीट हैज़ फॉल्टी हार्नेस और सीट बेल्ट, इट शुड बी प्लेकार्डेड एंड नॉट यूज्ड. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इफ़ अ सीट हैज़ अ फॉल्टी हार्नेस मतलब अगर उसका जो सीट बेल्ट है, हार्नेस जो है मतलब वो जो बेल्ट है बेसिकली, अगर वो सही नहीं है तो फिर क्या करना है, उसको लिख देना है कि एक प्लेकार्ड लगा देना है कि ये दिस हार्नेस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ इनऑपरेटिव एंड वी शुड नॉट यूज़ दिस हार्नेस. ओके, तो ओके, फिर है कि पैक्स यूजेस ओनली लैप बेल्ट एंड क्रू यूज लैप एज वेल एज शोल्डर हार्नेस, जो मैंने पहले भी बोला है. ठीक है, क्रू विल बी यूजिंग मोर प्रोटेक्टिव हार्नेस सो दैट they do not come across lot of forces of the flight, because they need to be at a static condition. Passengers से भी वो important है because they are controlling the aircraft. So they are made of nylon webbing करके आपने देखा होगा जो गाड़ी का जो सीट बेल्ट रहता है ना, वैसा ही होता है एग्जैक्टली. ठीक है, थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है बस, और कुछ नहीं, ताकि वो जो फोर्सेस ऑफ फ्लाइट है उसको ले सके, झेल सके उसको बेसिकली. ऑल एवियोनिक्स इक्विपमेंट्स हैव सेपरेट बे एंड हर एक एवियोनिक्स इक्विपमेंट का अलग अलग बे होता है, अलग अलग जगह होता है. तो ये दूसरे मॉड्यूल में दूसरे सब मॉड्यूल में भी है बेसिकली, कि अलग अलग एवियोनिक्स का अलग अलग सेपरेट बे रहेगा एंड उसमें अलग अलग कंप्यूटर्स इंस्टॉल रहेंगे. तो बे मतलब और कुछ नहीं है, कंपार्टमेंट्स है. ठीक है, जिसके ऊपर हम जैसा फ्लोर एक रैक जैसा है जिसके ऊपर आप बेसिकली कंप्यूटर्स को माउंट करके रखते हो. तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप उस बे के ऊपर माउंट करके रखते हो. Then all equipments in cockpits is made within the pilot's reach. और कॉकपिट के अंदर जो भी इक्विपमेंट रहेंगे उसको बहुत ध्यान से बनाना होता है कि पायलट जहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे P1 और P2, आई मीन पायलट इन कमांड एंड पायलट मॉनिटरिंग, so they should be able to access each and everything from their hands reach, so that they don't have to get up from their seat. So that is kept in mind. Okay. Then cabin furnishing materials should have low flammability
ठीक है, ताकि इजीली जल ना जाए, और स्मोक प्रोडक्शन रेट कम होना चाहिए, एंड प्रॉपरली इट शुड बी टेस्टेड कि इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट तो और फायर रेजिस्टेंट, और एवरीथिंग यूज्ड इनसाइड द केबिन, लाइक कोई भी सीट का कवर हो, सीट का मटेरियल हो, कुछ भी हो, देयर शुड बी ऑल फायर रेजिस्टेंट और फ्लेम रेजिस्टेंट. ओके, ऑल सर्टिफिकेशन इज एज पर दी CS25 ओनली. उसमें भी ये सब दिया हुआ होता है बेसिकली, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते हो, एंड इट्स एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस. एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस इज़ लाइक उसमें डिटेल्ड में रहता है कि क्या क्या फॉलो करना है एज पर CS25. ठीक है, ये एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस AMC जो होते हैं ये बेसिकली डिटेल में होता है कि क्या क्या करना है. अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को कैसे हम लोग को उसके ऊपर काम करना है. सो दैट विल बी गिवन इन डिटेल इन द एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ कंप्लायंस कि कैसे कंप्लाई करना है उस पॉइंट को. फिर ईच सीट रो यूजेज दी ACUs, जो मैंने पहले ही बोला है, सीट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट. हर एक सीट उसको सीट का जो रो है वो उसको यूज़ करता है, और मेंटेनेंस ऑफ दीज इज़ डन बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. इसका मतलब क्या है कि ये जो सीट्स होते हैं ना, ये नॉर्मली एयरक्राफ्ट के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बहुत ही कम केसेस होता है कि केबिन इंटीरियर का जो भी काम होता है वो खुद बनाता है, वो किसी दूसरे वेंडर से बना के फिर इंस्टॉल कर देता है. तो उसका जो सीट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूनिट है, जो बेसिकली वो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम हो या कोई भी सीट का जो रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म जो भी है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सीट रिलेटेड इश्यूज जो भी है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है तो उन सारे चीज़ को जो सीट बनाया हुआ है उसी का जो मैन्युफैक्चरर है वही देखेगा, वही सब कुछ करेगा, ऑल टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. तो अगर कुछ उसमें खराबी है तो द टेक्नीशियंस एंड द इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल जस्ट टू रिप्लेस इट. और वो जो ख़राब यूनिट है उसको भेज दो, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके पास भेज दो, वो देख लेगा, वो उसको ओवरऑल करके अपने पास रख लेगा. फिर अगर जब हम लोग को, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़ डन. इट्स लाइक ऑल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स. कुछ हो गया तो लाइन में उसको बस रिप्लेस कर दो, यू कैन नॉट फिक्स इट इन एनी वे. ओके, सो गैली इंस्टॉलेशंस. गैली मतलब जहाँ पे फूड बनता है, फूड या लाइक फूड एंड बेवरेजेस आर कुक्ड. यू मस्ट हैव सीन कि जैसे अब उठते हो सामने की तरफ और पीछे की तरफ, जैसे एयरबस में या बोइंग में सामने और पीछे की तरफ क्या होता है, दो गैलीज रहते हैं फॉर जहाँ पे केबिन क्रू भी रहती है, जहाँ पे खाना बना सब रहता है. तो उसमें क्या क्या होता है नॉर्मली, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो कहाँ होगा, वो तो एक ऐसा जगह पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई दोनों इजीली मिल सके. ठीक है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिकल बहुत कुछ चाहिए होता है, ओवन रहता है, फिर आपको उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है, और भी दूसरा सारा सिस्टम रह सकता है. और वाटर सप्लाई क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वाटर हमेशा चाहिए होता है कोई भी खाना बनाने के लिए. जैसे मैगी हो गया, फिर आपको उसमें वाटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए. जैसे कॉफ़ी हो गया, उसमें हॉट वाटर चाहिए. टी हो गया, उसमें हॉट वाटर चाहिए. तो वाटर सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो जहाँ से ये दो चीज़ एक्सेस हो सकता है वहीं पे ये होगा. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फिर नॉर्मली माउंटेड ऑन सीट ट्रैक्स टाइप इंस्टॉलेशंस एंड फास्टेंड विथ रॉड्स एट द टॉप. तो ये इतना लंबा लंबा होता है ना पूरा, मतलब केबिन के नीचे से लेके ऊपर तक होता है. तो ऊपर भी ये ऐसे होल्डिंग क्लैम्प्स रहते हैं जहाँ से उसको ऊपर से होल्ड किया जाता है, और नीचे वही सेम मैकेनिज्म सीट ट्रैक्स रहता है, और उसके ऊपर वो सीट जैसे लगा हुआ होता है क्विक रिलीज फास्टनर से. तो वही क्विक रिलीज फास्टनर या क्विक रिलीज जो लैच होते हैं उसी से वो नीचे लॉक हो, मतलब लॉक करके हम लोग रख देते हैं उसको. देन लोकेशन क्या है, नॉर्मली फॉरवर्ड एंड एफ्ट सेक्शन में रहता है गैलीज मतलब द फूड यूनिट्स. एंड लार्ज एयरक्राफ्ट्स में हैव एलिवेटर्स और लिफ्ट्स. जैसे डबल डेकर नहीं होता, जैसे बोइंग 747 है, ठीक है, तो उसका तो ऊपर भी पैसेंजर रहते हैं और नीचे भी पैसेंजर रहते हैं. डबल डेकर टाइप, जैसे डबल डेकर बस होता है वैसा है. तो उसमें क्या होता है कि गैली नॉर्मली नीचे ही रहता है, गैली ऊपर नहीं क्या करते हैं, क्योंकि वो CG जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. तो गैली नीचे ही रहता है. नीचे के कंपार्टमेंट से एक एलिवेटर या लिफ्ट जैसा सिस्टम रहता है, वो उसको आप दबा दोगे तो केबिन क्रू कैन एक्चुअली गेट ऑल द फूड्स फ्रॉम द लोअर फ्लोर टू द अपर फ्लोर. ठीक है, लोअर फ्रॉम द पैसेंजर्स जो नीचे बैठे हुए हैं वहाँ से उठा के खाना वो लिफ्ट ऊपर तक ले जा सकता है. ओके, दैट इज़ ओनली इन केस ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट्स. नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स हैं सारे एक ही फ्लोर पे एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं. तो उसके बस सामने और पीछे दो गैली रहते हैं बस. ओके, सो दे नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रेफ्रिजरेटर एरिया रह सकता है गली में, एक तो कॉफ़ी मेकर हो सकता है, ओवन हो सकता है. ओवन में आप उसको कोई भी खाने को गर्म कर सकते हो, हीटिंग एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. एंड गैली एरियाज हैव इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल्स
for controlling several units, and those electrical circuit panels are basically used by the flight attendants or the flight crew and may also have user interface. ठीक है, user interface मतलब क्या कि जो उसको यूज़ कर रहा है, फ्लाइट अटेंडेंट हो या कोई भी हो, वहाँ पे यूज़र इंटरफेस रहता है। में से एक मतलब एक डिस्प्ले जैसा रहता है, बटन्स रहते हैं कि जो चाहिए होता है आप वहाँ पे उसको अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन लाइक यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम होता है। कोई भी फ्यूम अगर वहाँ पे नेचुरली अगर फूड प्रोसेसिंग हो रहा है तो फ्यूम तो कभी ना कभी हो ही सकता है, स्मोक हो सकता है, फ्यूम हो सकता है। तो दिस थिंग्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, देयर विल बी सम एक्सट्रैक्टिंग मैकेनिज्म। कोई एक फ़ैन रहेगा जो एग्जॉस्ट फैन जैसा, वो उसको खींच के बाहर की तरफ भेज देगा। ठीक है, फिर ओके, तो कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज़ होता है? 115 वोल्ट AC यूज़ होता है, जो एयरक्राफ्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पावर है कोई भी हेवी एयरक्राफ्ट में, एंड नॉट ऑपरेटेड ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन। आप अगर देखे होंगे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ये जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, जो लाइक गैली इज़ वन ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स, अगर ये नहीं भी होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक ऑफ और बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक ऑफ एंड लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो नीचे तो उतरना है ना, अगर ऊपर गए हो तो नीचे उतरना है। तो नेचुरली यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक एंड फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वहाँ उस टाइम कोई भी दूसरे चीज़ में अगर आपका पावर डाइवर्टेड होगा, इलेक्ट्रिकल पावर, तो प्रॉब्लम है। तो जिसके कारण क्या होगा कि सारे जो ऑक्सिलरी थिंग्स है इसको बंद किया जाता है उस टाइम, इट इज़ नेवर यूज्ड। ओके, फिर कार्गो डोर्स कैसे ऑपरेट होते हैं? कार्गो डोर्स नॉर्मली ओपन आउटसाइड, इफ़ यू हैव सीन, बाहर की तरफ खुलता है। लॉजिक क्या है कि बाहर की तरफ खुलने से वो अंदर का जो जगह रहता है वो खाली हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है डोर के कारण, बार बार वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर आसानी से आप कोई भी पैकेज को ऊपर उठा सकते हो और नीचे भी ला सकते हो। दैट इज़ द रीज़न ये बाहर की तरफ खुलता है। ओके, और फायर रेजिस्टेंट लाइनर होते हैं उसके अंदर, कार्गो के अंदर, कि कोई भी कारण अगर फायर हुआ भी, ताकि वो ऊपर के कंपार्टमेंट की तरफ ना चला जाए, तो उसके सीलिंग से लेके साइड वॉल्स हर जगह पे फायर रेजिस्टेंट लाइनर होगा। फिर नेट बैरियर्स रहेंगे। नेट्स एंड बैरियर्स क्या होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट को आप उसके ऊपर चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट शेप का हो सकता है। ठीक है, हर एक बैग अलग अलग होते हैं, अलग अलग वेट होता है, अलग अलग शेप होता है। तो दैट में स्टार्ट मूविंग ड्यूरिंग द फ्लाइट ऊपर नीचे कर रहा है, रोल कर रहा है, बैंक कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, फिर आपका लैंड कर रहा है। तो ड्यूरिंग ऑल दिस फ्लाइट, इनसाइड द फ्लाइट कार्गो कंपार्टमेंट दिस वेट्स विल बी मूविंग। तो उसके लिए CG वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, लोड एंड ट्रिम में प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स द रीज़न व्हाट विल हैपन विथ सम क्विक रिलीज फिटिंग्स और लैचेस, नेट्स और बैरियर्स रहते हैं, जो वही नायलॉन का मटेरियल का बना हुआ होता है, स्ट्रिप जैसा। फिर उससे क्या होता है कि ऊपर और नीचे की तरफ माउंटिंग रहते हैं, और उस स्ट्रिप्स बेसिकली एक नेट जैसा बना हुआ होता है, उससे हम लोग उसको ऐसे गार्ड कर देते हैं कि वो एक ही जगह पे बना हुआ होगा और मूव नहीं कर पाएगा। वो जो अंदर में जो भी कार्गो है तो वो आगे पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक जगह पे स्टैटिक रहेगा ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट। फिर वेट एंड बैलेंस रिक्वायरमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल लोडिंग कार्गो। वेट एंड बैलेंस एक मैक्सिमम वेट हो सकता है कार्गो, परमिसिबल वेट, उससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि छोटा है लेकिन भारी है, तो यू जस्ट सिंपली कि अगर फिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वेट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर वेट को रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट होना चाहिए वहाँ पे, ताकि जो CG है दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर हम लोग कार्गो लोड को नहीं ले सकते। तो फिर क्या है कि कार्गो लोड कंटेनर्स जो होते हैं ना, इसको यूनिट लोड डिवाइसेस भी बोला जाता है, लाइक LD3 स्मॉलर देन ND लाइन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ULD? दीज आर लाइक, अगर कार्गो कंपार्टमेंट जैसे इसका शेप कैसा होगा, सेमी सर्कल जैसा होगा, है ना, क्योंकि फ्यूजलेज तो सर्कुलर है, तो कार्गो कंपार्टमेंट नीचे रहते हैं, फ्लोर के नीचे बेली सेक्शन पे रहते हैं पूरा, तो उसका शेप वैसा ही होगा, सेमी सर्कल जैसा। तो यूनिट लोड डिवाइसेस जो होते हैं ना, ये वैसा ही शेप का कंटेनर, एग्जैक्टली वैसा ही शेप का कंटेनर एयरलाइंस के पास रहता है, और उसी शेप कंटेनर के अंदर सारे बैग जो है, जो भी है, उसको आप अच्छे से उसको उसके अंदर भर के फिर उसी को चढ़ा देते हो, कि उस कंटेनर्स को चढ़ा देते हो ताकि वो जाके एग्जैक्टली फिट हो जाए। तो एग्जैक्टली उसी शेप में रहता है, वो जाके एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाता है। तो इससे अच्छा एक चीज़ होता है कि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज होता है,
ठीक है। इसको यूनिट लोड डिवाइसेस भी बोला जाता है, तो शॉर्ट में LD बोला जाता है इसको, लोड डिवाइसेस। तो LD3 जो है वो थोड़ा साइज़ में छोटा होगा, अगर LD9 होगा तो नेचुरली अगर जितना बड़ा वैल्यू होगा LD के बाद उतना बड़ा होगा, दैट्स द लॉजिक बेसिकली, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि LD3 विल बी स्मॉलर देन LD9, लाइक LD4 विल बी स्मॉलर देन LD6, जस्ट लाइक दैट। सो टू अपलोड दिस इलेक्ट्रॉनिक कार्गो सिस्टम इज़ यूज्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक कार्गो सिस्टम इज़ यूज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स रहेंगे जो उसको जिसको आप एक्चुएट कर सकते हो, एंड दोज विल बी बेसिकली मूविंग ऑल दिस थिंग्स इनसाइड, ठीक है। तो होगा कैसे, उसके अंदर पे बॉल रोलर्स रहते हैं, रोलर्स रहेगा नीचे जिसके ऊपर स्लाइड करेगा कार्गो यूनिट्स, ठीक है। एंड वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है और व्हील टाइप भी हो सकता है। तो वो क्या होता है कि ऑपरेटर कंट्रोल पैनल रहता है, ठीक है, जो पावर ड्राइविंग यूनिट भी बोला जाता है। वहाँ से उसको आप क्या कर सकते हो, उस एक साइड में रहेगा, कार्गो कंपार्टमेंट में घुसते ही लेफ्ट या राइट साइड में रहेगा। फिर आप जैसे लोड को ऊपर उठा दोगे, फिर वो जो ऊपर उठाया है जो ऑपरेटर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकली उसको वहाँ से कंट्रोल कर सकता है। फ्लोर कैन मूव, दोज रोलर्स इन द फ्लोर कैन एक्चुअली मूव, ठीक है। एंड लाइक दे आर माउंटेड विथ सम मोटर्स एंड दोज मोटर्स विल मूव, सो दोज रोलर्स विल ऑल्सो मूव। और उसी रोलर के ऊपर जब आप लोड दोगे, बेसिकली वो कंटेनर को उठाओगे, तो उतने सारे रोलर्स जब एक साथ मूव करेंगे तो कंटेनर भी मूव करना चालू कर देगा उस फ्लोर के ऊपर, ठीक है। वो भी धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ता रहेगा, पीछे की तरफ बढ़ता रहेगा, या कोई भी लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन पे जहाँ आपको जैसे चाहिए होता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपको हाथ से ना करना पड़े। वहाँ पे बहुत भारी रहता है, फिर हाथ से एडजस्ट करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, जहाँ से ऑपरेट कंट्रोल कर सकता है उसको। और पावर ड्राइवर यूनिट्स रहता है जो बेसिकली कुछ नहीं, मोटर्स होते हैं, और उसके ऊपर जैसे बियरिंग होता है वैसे ही यहाँ पे बुशिंग्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, या फिर आपका जो रोलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लगा हुआ होता है। ओके, एंड द वेरी लास्ट थिंग इज़ अबाउट एयर स्टेयर्स। एयर स्टेयर्स क्या होता है कि नॉर्मली अभी जो भी हम लोग का एयरक्राफ्ट हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि बस डोर्स रहते हैं, स्टेयर्स तो कुछ है नहीं। स्टेयर्स जो है वो बाहर से हम लोग जाके लगाते हैं उसमें, नीचे उतरने के लिए और ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, जो जो बिजनेस जेट्स होते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट, उसमें आपने देखा होगा कि डोर जो है वो नीचे आ जाता है, और नीचे आते ही डोर के अंदर की तरफ इनसाइड एरिया, इनसाइड सरफेस ऑफ द डोर इज हैविंग द स्टेयर्स। उसके साथ ही एक जॉइंट यूनिट में है कि डोर, वही डोर का काम कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ जा रहा है, ठीक है। और जब नीचे की तरफ आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, जब खोलते हो आप उसको तो ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल फॉल, और उसके अंदर आ जाता है आपका स्टेयर्स, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके का एयर स्टेयर बोल सकते हो, नॉर्मली फाउंड इन बिजनेस एयरक्राफ्ट्स, where the cabin door itself has stairs mounted on it that is operated by an electric switch outside the fuselage। बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो उसको। और एक तो स्विच रहता है, बस बेसिकली एक मोटर रहता है उसके अंदर, उस स्विच को आप एक्टिवेट कर दोगे तो मोटर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर चेन ड्राइव मैकेनिज्म रहता है एक अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस डोर को ऊपर की तरफ उठा देगा, और जब उसको नीचे की तरफ खोलना होता है तो एक लैच रहता है, लैच को आप उठा दो, बाय ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। नीचे उतरने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। बाई ग्रेविटी बहुत हेवी होता है, तो बाई ग्रेविटी इट कैन इजीली कम डाउन स्लोली। ऊपर उठाने के लिए बस एक डीसी मोटर रहता है, एंड वो हम लोग स्विच से ऑपरेट करते हैं, फाइन। सो यूजुअली नॉट यूज्ड इन पैसेंजर कैरियर्स, जो बड़े जहाज होते हैं उसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि इतना हेवी होता है ना, उसको स्टोरेज करना, मतलब बार बार ऊपर उठाना और नीचे डालना। अगर कोई कारण, लेट्स से इफ द door becomes inoperative, if the switch do not work or the electrical supply do not come, then it will be a big problem, ठीक है। क्योंकि उतना भारी एक स्टेयर्स को आप फिर ऊपर नहीं उठा पाओगे, ठीक है। फिर इधर आपको उसको डिटैच करना होगा उस टाइम, या फिर कोई दूसरे तरीके से आपको उसको अंदर ले जाना होगा बाई मैन पावर और एनीथिंग, और अल्टीमेटली विच मीन्स इज देयर विल बी टेक्निकल डिलेज, ठीक है, जो एक शेड्यूल एयरलाइंस में कभी भी कोई भी सहन नहीं करेगा, राइट। So that's all about it. It was a very small chapter, and just keep revising these PDFs, okay? Why I'm making this, because ये exactly वही है जो बुक से उठाया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। The more and more you revise these PDFs, it will be easier for you to remember. बार बार इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो, एंड फिर एग्जाम तक आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू कम अप विथ इज फायर प्रोटेक्शन, जो थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगा है मुझे वो करने में, 3 दिन लग गया है,
I'm slowly reading and just making the notes and also coming up with videos. So you keep just following all these video lectures and also keep reading it. ड्राइव के लिंक में आपको ऑल द PDFs मिल जाएंगे. 26 भी अपलोडेड है, आप चाहो तो वहाँ से 26 भी स्टार्ट कर सकते हो एट योर ओन व्हील. मैं जितना जल्दी हो सके मैं आ जाऊँगा एक 26 का वीडियो लेके. ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट.